Everyone, welcome back in our channel. In this lecture, the subject is transportation engineering. You know that, and the unit is same unit 2 railway engineering. But the part of unit 2 railway engineering 2.5, this unit is carry about 2.5, that is station and yard. What is station? What is yard? We conclude in this topic or in this lecture. Okay. Before we come to the point of this lecture or video, I remind you that last videos we have crossing junction. Okay, junction is the last topic where we left the video. Okay, this is the after junction, one topic is left, that is terminal. What is terminal, how it is used and where it is used, we will discuss in these videos also. After that we jump into station and yards. Okay. One thing is also notice that junction, after junction, one topic is left, that is terminal, and terminal is the last topic of station. Okay, after that we have to read about the yards. In station and yards there are two types: first station and second one is yard. Stations we conclude in a few minutes, and after that we read about or we understand about the yards of the railway engineering. Okay, unit 2. Okay. Okay, this is our 50th 15th 15th videos or lecture, you can say, in the subject transportation engineering, in which we discuss all the component, all the parts, each and every topic from top to toe. Okay, discuss. Now the word is terminal. What is terminal? This diagram shows the all about the terminal. First one is road. The right side has road, but platform number 1, track 1, platform number 2, track 2, platform number 2, 3, 4. A number of platform numbers are contained by a railway stations where the terminal is shown. For example, you have in Bihar Rajendra Nagar terminal. Okay, that is terminal. Why that is terminal? Because a number of track, a number of lane are provided in that station. Okay, a number of terminal is in India, in Indian Railway. Okay, now what is terminal? That the station at which railway line or one of its branches terminates, or continuity of line stop is known as terminal station. The important terminal station in India are Havra, Sialda, Mumbai, in etc. In such terminal station, facilities like servicing of engines and vehicles, reversing of engines एंड अदर फैसिलिटीज़. कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि द स्टेशन एट विच रेलवे लाइन, ऐसा स्टेशन जहाँ पे रेलवे लाइन और वन ऑफ इट्स ब्रांच, या तो उसका एक ब्रांच टर्मिनेट्स बाय कंटिन्यूटी और लाइन स्टॉप, इज नॉन एज टर्मिनल स्टेशन. हो सकता है वहाँ पे लास्ट स्टॉप हो, ठीक है ना, वहाँ से चेंज कर दिया जाता है डायरेक्शन, उससे आगे नहीं आ सकता है, और भी ढेर सारी बातें होती है, ठीक है ना. तो उसको, उस जगह को हम लोग टर्मिनल बोलते हैं, उस स्टेशन को हम लोग टर्मिनल बोलते हैं. इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है टर्मिनल्स का, कि स्टेशन जो है वो इंडिया में ढेर सारा है. हावड़ा जो स्टेशन है वो टर्मिनल है, सियालदा टर्मिनल है, मुंबई टर्मिनल है ना. तो इस तरह का ढेर सारा है. इन सच टर्मिनल स्टेशन फैसिलिटीज़, कैसा कैसा स्टेशन फैसिलिटीज़ क्या है,
सर्विसिंग ऑफ इंजन, इंजन को ठीक किया जाता है वहाँ पे, ठीक है ना। अगर कुछ पार्ट्स ख़राब हो चुके हैं तो वहाँ पर ठीक किया जाता है, किसको, इंजन को, राइट। एंड व्हीकल्स, वही इंजन्स को, उसके सारे पार्ट को, पीछे वाले बोगेज को, वैगन जिसको बोलते हैं उसको। और क्या है, रिवर्सिंग ऑफ इंजन्स, इंजन को रिवर्स भी किया जाता है। मान लो एक दिशा में जा रहा होता है ईस्ट से वेस्ट, अब वहाँ पर ख़त्म हो गया, अब वेस्ट से ईस्ट जाना है, तो फिर क्या करेंगे। हाँ, पावर होता है कि पीछे से भी वो ऑटोमेटिक होता है, दोनों तरफ चल सकता है, लेकिन आगे रहता है तो अच्छा रहता है, तो फिर उसको क्या बोलते हैं, चेंज करके आगे लाते हैं इंजन को, राइट। इंजन, व्हीकल्स, इंजन्स एंड अदर और भी ढेर सारा फैसिलिटीज़ होता है किसमें, टर्मिनल में, ठीक है। ये टर्मिनल का लेआउट है, छोटा सा लेआउट है, ठीक है ना। वहाँ पे ख़त्म हो चुका हुआ है, चेकिंग स्पेस वगैरह ख़त्म हो चुका है वहाँ पे, अब आगे ट्रैक नहीं जा रही, ठीक है ना, आगे ट्रैक बिल्कुल नहीं जा रही, ठीक। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि है हमारा यार्ड्स, जिसको हम स्टेशन यार्ड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। स्टेशन के बारे में हम जानकारी ले लिए, अब हम लोग यार्ड्स के बारे में जानते हैं कि एक्चुअली में यार्ड्स क्या होता है, राइट। यार्ड्स क्या होता है देखते हैं, ठीक है। डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज़ अ प्लेस ऑन अ ट्रैक वेयर ट्रेन स्टॉप फॉर क्लियरिंग पैसेंजर and goods and proceed only after clearance from station authority. In this yard, movement of train is controlled by prescribed norms, rules and regulation or special instruction. तो कहने का क्या मतलब है, इट इज़ अ प्लेस ऑन अ ट्रैक, ये ट्रैक पे प्लेस होता है, किस तरह का प्लेस होता है देखते हैं। वेयर ट्रेन स्टॉप्स, जहाँ पे ट्रेन रुक जाती है, फॉर क्लियरिंग पैसेंजर, या तो वो पैसेंजर को उतारने के लिए, पूरे पैसेंजर को उतारने के लिए, या तो गुड्स, सामान के लिए, और ये तब तक प्रोसीड नहीं करता है जब तक क्लियरेंस स्टेशन अथॉरिटी के द्वारा नहीं मिल जाता है जाने को, ठीक है ना। इन दिस यार्ड मूवमेंट ऑफ ट्रेन इज कंट्रोल्ड, इस टाइप के यार्ड में अगर मूवमेंट, अगर बात करें किसका, ट्रेन का मूवमेंट का, ट्रेन वो कंट्रोल किससे होता है, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन है, प्रिस्क्राइब नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, और स्पेशल, और क्या हो, स्पेशल इंस्ट्रक्शन से ही इस यार्ड पे जो मूवमेंट होता है ट्रेन का वो होता है। ऐसा नहीं कि बस स्टेशन पे रुकी 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, या 5-10 मिनट के लिए फिर आगे बढ़ता गया, नहीं। यार्ड इज़ अनदर थिंग। किन किन टाइप्स के होते हैं यार्ड्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ स्टेशन यार्ड्स, पहला पैसेंजर यार्ड, दूसरा गुड्स यार्ड, तीसरा लोकोमोटिव यार्ड्स, और चौथा मार्शलिंग यार्ड्स। एक एक करके हम लोग डिफाइन करेंगे इसको कि एक्चुअली में क्या होता है इन टाइप्स के यार्ड्स का मतलब, है ना। तो बात करते हैं, पहले हमारे पास क्या है, कौन सा टाइप्स का यार्ड, मेरे पास है पैसेंजर या बॉगीज यार्ड। क्या होता है इसमें देखते हैं। द मेन पैसेंजर bogies yard in the is to provide facilities for the safe movement of passenger and vehicles. Passenger platform may be regarded as passenger yard. This yard of specific importance at terminal station or junction where extra passenger bogies are accommodated and cleaning, washing or storing is done. स्टोरिंग इज डन, ओके। इस टाइप के क्या पैसेंजर बोगीज यार्ड मतलब क्या हो गया, स्टेशन यार्ड में जो होता है, जहाँ पर प्लेटफॉर्म वगैरह रहता है, वहाँ पे भी उसको हम कंसिडर कर सकते हैं स्टेशन यार्ड का, जहाँ पे क्या होता है, पैसेंजर को उतारा जाता है ना। और भी क्लीनिंग, कहीं कहीं देखे होगे कि स्टेशन पे ना आधे घंटे रुक गई गाड़ी, क्या होता है आधे घंटे रुक के, या तो आगे क्लियरेंस नहीं मिल रहा, वो तो अलग चीज़ है, ठीक है ना। अगर वैसे अगर टाइमली रुका हुआ है कि हर वहाँ पर ट्रेन, वो वाली ट्रेन हर दिन जब भी आती है वो ट्रेन वहाँ रुकती है उतने टाइम के लिए, तो क्या होता है उसका मतलब वो होता है, हो सकता है वहाँ पर क्लीनिंग का काम चल रहा होगा। कभी कभी कहीं कहीं स्टेशन में क्या होता है, पानी चढ़ाने का काम होता है। पानी चढ़ाने का मतलब क्या कि सारे बोगीज़ में जो टैंकी होते हैं, टैंक होते हैं पानी वाला, तो वो काम किया जाता है। मतलब कोई भी ट्रेन आएगा वहाँ पर पानी, उस स्टेशन पे पानी डाला जाएगा उस वाले पर्टिकुलर बोगीज़ वगैरह में, है ना।
तो ये सब होते हैं पैसेंजर यार्ड्स में। दूसरा देखते हैं गुड्स यार्ड्स। द मेन फंक्शंस ऑफ अ गुड यार्ड्स इज टू प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर रिसीविंग, loading and unloading, delivery of goods and the movement of goods vehicles. All stations except flag station are provided with goods yard. Separate goods siding are also provided for storing and delivery of goods. अब एक बात बताओ कि ऐसा थोड़ी है मेन लाइन में हम मालगाड़ी को खड़ा कर दें और फिर हम घंटों, मतलब 4-5 घंटे से हम सामान उतरवा रहे हैं। उससे क्या होगा कि आवागमन जो होगी दूसरी ट्रेन की वो बाध्य होगा, ठीक है ना। इंटरप्ट होगी, है ना। क्या होगा, स्टेशन पे जो और दूसरी ट्रेन आ रही है उनको दिक्कत होने लगेगा। क्या होने लगेगा, उनको दिक्कत होने लगेगा, ठीक है। तो उस दिक्कत को कम करने के लिए क्या करते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं, एक लाइन होता है फ्लैग स्टेशन बाजू में, वहाँ पर आपको मालगाड़ी क्या करता है, अगर लास्ट वाला बोगीज में अगर वहाँ पर डालना है तो वो बोगीज खुल भी सकता है, वहाँ खोल दिया जाता है। अब वो सामान उतार रहा है, सामान उतार के जब खाली हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम जब रिटर्निंग हो रही होती है या दूसरी आ रही होती है मालगाड़ी, तो क्या होता है वहाँ पे उस वाले को फिर कनेक्ट करके फिर ले जा चुके होते हैं, राइट। तो इस तरह क्या होता है हमारा कि टाइम कंजम्पशन कम होता है, ठीक है ना। क्योंकि मालगाड़ी में क्या होता है कि पूरा सामान एक साथ ही उतरने का चांस ही नहीं। अगर एक एक स्टेशन में अगर मान लो 4-5 घंटे रुकने लग गया तो फिर हो गया। उसे क्या होगा कि 200 किलोमीटर जाने में हमको लगता है 5-7 दिन लग जाएगा, ठीक है ना। तो इस चक्कर में, ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा है मार्शलिंग यार्ड्स। व्हाट इज मार्शलिंग यार्ड्स? मार्शलिंग यार्ड is said to be a machine to receive breakup machine, dispatching train or onward. In other words, a marshalling yard is one where trains and other loads are received, stored out, and new train formed and dispatched onward to three disintegration. तो पूरा कहने का क्या मतलब है मार्शलिंग यार्ड्स का? मार्शलिंग यार्ड्स उसे कह सकते हैं हम कि एक टाइप का मशीन को रिसीव करने का। अब कौन सा मशीन को रिसीव कर रहा है मार्शलिंग यार्ड? ब्रेकअप, मतलब जो ख़राब हो चुका है, ब्रेक डाउन जिसको बोलते हैं ना, कि मेरी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई। ब्रेक डाउन मतलब क्या होगा कि ख़राब हो गया, कोई भी कारणवश ख़राब हो गया, ठीक है ना, वो हो चुका होगा। डिस्पैचिंग ट्रेन और ऑनवर्ड्स, और ट्रेन को दूसरे जगह ले जाने के लिए भी आगे फॉरवर्ड करने के लिए भी मार्शलिंग या मार्शलिंग से ही किया जाता है। आगे है इन अदर वर्ड अ मार्शलिंग यार्ड इज वन वेयर ट्रेन्स एंड अदर लोड आर रिसीव, स्टोर्ड आउट एंड न्यू ट्रेन्स फॉर्म्ड एंड डिस्पैच ऑनवर्ड टू देयर डेस्टिनेशन। दूसरे भाषा में हम क्या बोल सकते हैं कि मार्शलिंग यार्ड जो होता है वो होता है जो ट्रेन, वेयर द ट्रेन या अदर लोड्स को रिसीव किया जाता है, मार्शलिंग यार्ड्स के द्वारा रिसीव किया जाता है, वहाँ पर रखा जाता है और उसको न्यू ट्रेन फॉर्म किया जाता है। कभी कभी क्या होता है बोगीज वगैरह इतने ख़राब कंडीशन में हो जाते हैं कि उसको मतलब फिर से रिकन्स्ट्रक्ट आप बोल सकते हो, है ना। तो उस चक्कर में क्या होता है कि ट्रेन को फिर से अच्छे तरीके से बनाया जाता है, बोगीज वगैरह को, इंजन वगैरह को, है ना। तो वो करके फिर आगे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का वो काम करता है कौन? मार्शलिंग यार्ड्स, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है इन मार्शलिंग यार्ड्स लोडेड एंड एम्प्टी गुड्स wagons are first received from different line for booking in different direction, and the wagons are separated, sorted and dispatched onward in full train for each lines। मतलब क्या होता है इस मार्शलिंग यार्ड्स का और एक काम क्या रहता है कि कौन दिशा में कौन ट्रेन जाएगा, किस टाइप का गुड्स लेके वो जा रहा होगा, वो भी वो डिसाइड करता है, फिर आगे वो प्रोसीड करवाता है, राइट। मार्शलिंग का भी टाइप्स होता है, जैसे हम्प यार्ड, ग्रेविटेशनल यार्ड और फ्लैट यार्ड, ठीक है ना। ये क्या होता है टाइप्स ऑफ मार्शलिंग यार्ड का। तो ये था टाइप्स ऑफ स्टेशन यार्ड्स, ठीक है ना। पैसेंजर, गुड्स,
लोकोमोटिव और मार्शलिंग, ठीक है ना। ये जो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा है ये लास्ट टॉपिक है 2.5 का, स्टेशन एंड यार्ड्स का। इसमें आपको पढ़ना है वाटर कॉलम के बारे में। व्हाट इज़ वाटर कॉलम? अगर थोड़ा सा हम डिटेल दें तो आप लोग अच्छा हाँ हमने भी देखा है इस तरह का वाटर कॉलम। क्या होता है, स्टेशन यार्ड्स के स्टेशन ट्रैक के बाजू में एक कॉलम पाइप रहता है, कितने फीट के कितने मीटर के होते हैं वो हम बता देंगे अभी, ठीक है ना। इसके सहारे वाटर भरा हुआ जाता है, वाटर का अगर डिमांड होता है लोकोमोटिव पे तो वो किया जाता है, ठीक है ना। एक और फिगर है मेरे पास, ये देखिए, अगर जूम करने की कोशिश करें तो ये, ठीक है ना, ये कॉलम है उसमें पाइप लगी हुई है और उससे पानी निकल रहा है, राइट। ये भी है, इसको भी अगर हम जूम करके देखें तो इस तरह करके कोई है, ठीक है, ट्रैक के बाजू में, राइट। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द वाटर कॉलम देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वाटर कॉलम? To meet various purpose, station yard is equipped with a number of equipments. Water column is one of them. It consists of a vertical pipe and attached with horizontal neck pipe with movable adjustment as foot valve is provided to regulate the flow of water. In water column, the height of water column is 4.42 meter above ground and projection from vertical pipe is 2.6 meter. कहने का क्या मतलब है कि to meet various purpose station yard is equipped with a number of equipments. बहुत सारा पर्पस होता है, बहुत सारा डिमांड होता है रेलवे का, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट लगाए जाते हैं इंडियन रेलवे में, राइट। उसी में से एक इक्विपमेंट है वाटर कॉलम। ये जो वाटर कॉलम है ये कंसिस्ट करता है वर्टिकल पाइप एंड अटैच्ड विथ हॉरिजेंटल नेक पाइप, और इसके अटैच्ड एक हॉरिजेंटल पाइप रहता है, ठीक है, प्रोवाइडेड टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर। किसके लिए? फ्लो ऑफ वाटर के लिए हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं। इन वाटर कॉलम द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इज़ 4.42 मीटर, 4.42 मीटर इसका हाइट होता है, ठीक है। और इसका जो वर्टिकल पाइप प्रोजेक्शन होता है वो 2.6 मीटर होता है, 2.6 मीटर का इसका हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन होता है। तो ये जो फिगर अभी हम लोगों ने देखा था थोड़ी देर पहले अपने डैशबोर्ड पे, अपने स्क्रीन पे, वो क्या था? हमारा एग्जाम्पल ऑफ वाटर कॉलम विच इज़ रेयरली fixed at the railway station or near the railway track. Okay, so this is all about for 2.5, that is station and yards of railway engineering unit 2 of transportation engineering. The last topic we have of railway engineering is 2.6, that is track maintenance. In our next lecture or videos we conclude each and every part of track maintenance. Till that, thank you for watching. And one thing is, every videos contain that please ensure your attendance on comment box, not a live chat. Okay, thank you everyone to watch this video.